So here is Ravi. He is All India rank 38. And he is from Jharkhand. He is a engineering, a graduate. He is from ISM. Anyone from ISM here? Yes. So he is from ISM Dhanbad, and he has qualified this exam in the very second attempt. Okay? So you can ask your queries. You can ask from him, is it important to know why Nehru has taken the issue of Kashmir to UN? Is it important or not? है ना? Because he'll tell you क्या पढ़ना है क्या नहीं, and he has also got very good scores. One of the good scores in essay this time. है ना? Essay का तो पेपर देखा होगा आप लोगों ने. So he has got 139. One of the very good scores, because this time many students are not in the list just because of essay. 90 से less बहुत लोगों के number है. So he is going, you can ask him questions, queries, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नेहरू वर्सेस मोदी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसे में कैसे करना है, बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे करना है, ठीक है? So over to you and welcome Ravi. Thank you ma'am. So my introduction has already been given by ma'am. तो start करने से पहले I would like to have some answers from your side. Why do we want to write an essay? Why does UPSC want us to write an essay? Why does most of the popular universities or the famous or the Ivy League colleges in the world want you to write an essay for them? For in any simple topic? Even now corporates are asking. Yes. Why essay? Why not technical coding background? आपका जो background? Why not mechanical engineering? Why not your humanities subject? Why not your hold in history? Why not? कोई बताएगा क्यों essay? Yeah. Opinions जानने के लिए हुआ है. हमारे बीच मेरा पार्टी जी होती तो वो बोलती कि नहीं. Yeah. So generalistic approach. Okay. Let's see. Generalistic approach. दूसरा है opinion, to know our opinions, right? Anyone else? जोर से बोलो. I'll repeat that from here. Sir, I think it is good to know a few things if you are knowledgeable and everything. But if you are unable to express that thing to the other person, then that is a challenge. Right. And essay is a means to express yourself to the other person and how well you can make your opinion to be understood. Right. You may laugh, but she was able to express herself. यहाँ पे बहुत लोग नहीं कर सकते हैं. That is true, and that is equally true. अभी मैं इस पे disproportionate focus करने ही वाला था. और इससे पता चलता है बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे. Actually, in my opinion, it's understanding and communication skill. Communication skills. Well and good. Communication skills. Understanding भी बोल दिया आपने. Just good. Correct. काफी. I won't take beyond that. Analytical approach. चलो good. ये भी. ये analytical क्या है इसमें? Analytical approach. नहीं ठीक है. I'll explain that. He's right. ठीक है. तो मैम बता रही थी कॉर्पोरेट्स भी अब ऐसे ही चाहते हैं. तो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड में ना आपको ट्रेन किया जा सकता है किसी भी टेक्निकल थिंग में. आप अपने प्रोफेशन में, करियर प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद, एक रिपीटेटिव टास्क के बाद, है ना, वो हो सकता है. लेकिन ऐसे इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. शॉर्ट में बोले तो ऐसे इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, ऑफ योर थॉट प्रोसेस. क्योंकि आप 1200 वर्ड में लाई नहीं कर सकते. आप 150 वर्ड में कर सकते हो याद करके, पर 1200 वर्ड में आप झूठ नहीं बोल सकते. यहाँ वो रिफ्लेक्ट होगा ही जो आपका थॉट प्रोसेस है. तो ऐसे इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन मतलब मिरर वाला नहीं, रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर थॉट्स. जो आपने 1.5 साल में या उससे पहले, सबके अपने अपने रीजंस हैं यहाँ आने के. व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, IAS IPS या कुछ भी बनने के. वो रिफ्लेक्शन है ना, वो मोटिवेशन है ना जो आपको ड्राइव करता है. उसके लिए आपकी लॉजिकल क्लैरिटी से उसका क्या कनेक्शन है कि आपने आया यहाँ पे पढ़ाई की, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की, उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है. कि जिसने जितना मेहनत किया, सिर्फ मेहनत नहीं किया, समझा है चीज़ों को, है ना, इस गेम को क्रैक किया है, उसके माइंड में एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो क्लैरिटी होती है हर चीज़ को लेके. ओपिनियन को लेके हो सकती है, एक फैक्ट को लेके हो सकती है, लोगों के बारे में हो सकती है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हो सकती है, राइट.
तो ऐसे में सब कुछ रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। आप 1200 वर्ड में कुछ भी टेक्निकल, प्योर टेक्निकल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यूपीएससी टॉपिक ही ऐसे पूछता है जिसमें आपका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस आस्क करने पड़ेंगे, व्हाई दिस, व्हाई दैट, राइट। तो सोक्रेटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नो thyself। फिर बोलते हैं एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्यों एग्जामिन करना है भाई? तो यहाँ पे आता है एक चारवाक हमारे। चारवाक समझते हैं? लोकायत भी बोलते हैं ना इसे, राइट। इसे बोलते हैं लोकायत। कौन थे इसके फाउंडर या प्रोपोनेंट? हाँ, चारवाक। मकली गोसाला आजीविका सेक्ट के थे। चलो पता कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है ऋणम कृत्वा घृतम की पिबेत, मतलब क्या, टेक लोन एंड मेक मेरी, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नो thyself। सोक्रेटिस बोलते हैं कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। पूछा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, तो लाइफ कैसे जिया? और ये बोलता है लाइफ जियो, मस्ती मनाओ। तो दो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, अपन दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों में इक्वल फोकस है। एक फिलॉसफी एथिक्स में आ जाता है, दूसरा आपका पेपर 1 में आ जाता है। तो एक ही ऐसे में आप दोनों लिख सकते हो, और दोनों पे इन्विजिलेटर को अग्री करना पड़ेगा। अगर वो अग्री कर जाते हैं तो आपका ऐसे अच्छा जा रहा है ना। दिस इज हाउ यू आस्क क्वेश्चंस, दिस इज हाउ यू क्रिटिकली इवेल्युएट थिंग्स विच आर इन योर माइंड, राइट। इस बार का टॉपिक था एक कि, राइट इट डाउन द टॉपिक, आई डोंट रिमेंबर, कि मटीरियलिज्म से रिलेटेड। सो इस बार ये क्वेश्चन था विच आई अटेम्प्टेड दिस टाइम, कि फिलोसॉफी ऑफ wantlessness is utopian, while materialism is a chimera. Materialism is a chimera. Here it goes, right? ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो फिलॉसफी हमने पढ़ी नहीं है, वांटलेसनेस होता क्या चाहिए, तो बहुत कुछ। यूटोपियन वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, काइमेरा मतलब का भी नहीं समझ में आया, और मटेरियलिज्म होता क्या है। प्रॉब्लम तो है। अभी कुछ लोग बता सकते हैं जिन्होंने थोड़ी फिलॉसफी ऑप्शनल ली है या ऐसे, लेकिन क्या कहना क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं है, मज़ा नहीं आया, राइट। तो ये एक टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं अब यूपीएससी में, तो ये जनरलाइज होने वाला है। अब आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको वर्ड मीनिंग ना समझ में आ जाए, और इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है, यू डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड एंड यू राइट ए होल एसे ऑन दैट टॉपिक। तो डिजास्टर्स होने वाला है, राइट। तो थोड़ी पकड़ बनानी है। हिंदी में भी लिखते हैं, ट्राई करके देख लेना, वो भी नहीं समझ में आएगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये टॉपिक था। तो मैं मटेरियलिज्म की बात कर रहा था, राइट। तो देखो कितना कंट्राडिक्टिंग है कि फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, कि कुछ कम चाहिए, कम चाहत कम हो किसी चीज़ की, है ना। आपको रिक्वायरमेंट ही कम हो, एक मिनिमलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा है, या दूसरों के लिए जीने की बात कर रहा है। यूटोपियन आपको पता है क्या होता है यूटोपिया? चलो ठीक है, एक वर्ड लेता, किसी ने पता? आइडियल स्टेट, यूटोपिया। नॉट एग्जिस्ट इन द रियल सेंस, बट आइडिया है ये, राइट। मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। मटेरियलिज्म पता है, कंजप्शन से रिलेटेड है, आपके मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। काइमेरा इज व्हाट व्हाट बोलो यार, किसी ने बताया था? चलो ठीक है, एक शॉर्ट हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ था, माया, और ये लड़की नहीं है, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन, कि ऐसा फिलॉसफी, ऐसा आइडिया जो बोलता हो कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, कम कंजम्पशन हो, वो यूटोपियन है, वो आइडियल स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है। और मटेरियलिज्म भी एक माया है जिसमें लोग फंस के रह जाते हैं, विच इज़ राइट। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इस टॉपिक को? मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि इसके पार्ट्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस टॉपिक। इसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस ऐसे के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ओके। हाँ सब हैं, सब उठा के देख लेना, 2-3 समझ में नहीं आएंगे क्या बोलना सर। एक और था, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। आई डोंट नो व्हाट इज रियल एनीमोर, कंप्लीटली डिफरेंट। हिंदी मीडियम से हैं कोई? नहीं है, ओके फाइन। तो ठीक है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। हिंदी वाले और टफ हो जाते हैं, ट्रांसलेट करके थोड़ा मीनिंग बदल जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे के सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, राइट। मैं इंट्रो लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नंबर 1 पार्ट।
नंबर 2 आता है आपका लिंकेज। लिंकेज और डायरेक्शन में इसे बोलता हूँ जनरली, डायरेक्शनल पैसेज। फिर आता है आपका हियर इट इज योर बॉडी। 4 आता है आपका प्री कंक्लूजन। और 5th आता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये मेजर पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं एक ऐसे के, कि सारे आंसर्स के भी ऐसे ही होते हैं, पर छोटा आंसर है तो आप लिंकेज काट देते हो, प्री कंक्लूजन काट देते हो, एंड दिस इज योर मेंस का आंसर, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, राइट। मेंस का आंसर भी इसी स्ट्रक्चर में लिखते हैं, राइट। तो आई टेक अप द सब टॉपिक्स वन बाय वन फ्रॉम हियर। तो इंट्रो में बात करते हैं, ये टॉपिक लिख लेना आप लोग, है ना। आई हैव अ डिस्कशन ऑन इट कि वांटलेसनेस वर्सेस यूटोपिया, वांटलेसनेस वर्सेस मटेरियलिज्म पे विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन कि आखिर में इसको अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले आउट से कि एक ऐसे लिखने से पहले आप लोग एक शॉर्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, नेचुरल आता है कुछ लोगों को लिखना। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं कि वी ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू वेरियस सब टॉपिक्स, कि जितने आपके कीवर्ड्स हैं ना, आपके 1200 वर्ड का फ्लो कैसा होना है वो आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले इंट्रो में आते हैं। इंट्रो में दो तीन टाइप्स हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आप एक इम्पैक्टफुल कोट लिख दो, बहुत इम्पैक्टफुल कोट लग रहा है, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि आप एनेक्डोट लिखो। क्या होता है एनेक्डोट्स, कोई बताएगा? तीसरा होता है कोई स्टोरी लिख दो। तो आपको कोई बताएगा एनेक्डोट्स क्या होता है? सम रियल स्टोरी, ठीक है, रियल शॉर्ट स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऐसा एनेक्डोट जो क्विकली दिया जाता है, ठीक। चौथा हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये एक एजम्पशन भी बताता है, आप अपने एजम्पशंस को एक कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, उसे क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ आइडियाज निकालते हैं और बाद में बताते हैं कि वो उसने सही किया, गलत किया, या वो कैरेक्टर जो है वॉज अ गुड पर्सन और नॉट, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है एजम्पशन। कोट से एक रिलेटेबल कोट कोई भी मार सकते हैं आप, इसमें कोट कलेक्ट कर सकते हो। फेमस, आपको क्विक थ्योरी में देता हूँ, फेमस लोगों के जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए हैं, आपके MK गांधी हो गए, कोफी आनंद के कोट्स हो गए, एकदम ये कमाल का बंदा है, इन्हें सब कुछ आता है, सबके बारे में एक कोट है। लाइफ में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, एक मोटिवेशनल कोट चाहिए, कोफी आनंद सर के पास चाहिए, उनके पास होगा ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा आप जा सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के कोट्स पे। मैं इंडियन जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, चलो वेस्टर्न फिलोसफी में भी थोड़ा जा सकते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स में आपका सोक्रेटिस आ जाएगा, प्लेटो आ जाएंगे, कुछ और कोट्स आपके आ जाएंगे। मार्क ट्वेन के कोट हैं बहुत सारे, मार्क ट्वेन के बहुत सारे कोट्स हैं, है ना, ये उठा लेना है यहाँ से। इसके अलावा पॉपुलर जो हो गए आपके डिओंटोलॉजिकल थॉट के हैं हमारे, इमैनुअल कांट, राइट। इसके अलावा और 2-3 हैं, आप देख लेना है यहाँ पे। हमारे बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, राइट, बॉटनी एरिस्टोटल, दिस। तो इनके कोट्स हैं, कोट्स करेक्ट करने हैं, राइट। मैं आपको कुछ कोट्स रीड करके बता देता हूँ कि कैसे कोट्स जनरली सूटेबल होते हैं, राइट। तो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ माई ओन, अगर आपको चाहिए होगा तो आई वुड शेयर दैट इन माई टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कंटेंट्स अगर चाहिए इसके लिए तो, राइट। तो लाइफ के बारे में है कि एक गुड लाइफ के ऊपर आपका है, राइट। अगर आपके पास एक लाइफ के ऊपर टॉपिक है तो दिस कोट सेज ए गुड लाइफ इज अ प्रोसेस नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग। ए गुड लाइफ इज अ प्रोसेस नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग। ये इन इटसेल्फ अ होल टॉपिक हो सकता है ऐसे का, राइट। तो अगर आपके पास रिलेटेबल ऐसे कोट है तो आप बता सकते हो व्हाई ए गुड लाइफ इज अ प्रोसेस नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग। इट इवॉल्व्स, राइट, इट इवॉल्व्स। चार्ल्स डार्विन की आप बात कर सकते हैं, इवोल्यूशन की बात कर सकते हैं कि एक पर्सन की डेस्टिनी होती है कि ही अटेन्स द बेटर। आप हमेशा बेटर की ओर भागते हो, बेटर इन योर कैरेक्टर, बेटर इन योर पर्सनैलिटी, बेटर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, राइट। एंड स्टेट ऑफ बीइंग नहीं हो सकता, वो स्टैग्नेंट नहीं हो सकता। व्हाट इज लाइफ बट ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो
मैं फिलॉसफी बात कर रहा हूँ एनीवे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ वगैरह जैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में कोट्स बहुत इंपैक्टफुल रोल प्ले करते हैं। एक रिलेटेबल कोट मारोगे आप, आपको याद होगा। जैसे कॉन्शियंस के ऊपर आप कहते हैं, आपके एक इथिकल डायलेमा प्रेजेंटेड है एक एसे में, आप डिस्कस कर रहे हो चीज़ें और आपको इथिकल डायलेमा मिल रही है, ठीक है, तो आप गांधी जी का कोट मार सकते हो, राइट। कॉन्शियंस के बारे में गांधी जी बहुत कुछ कहते हैं कि देयर इज नो हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस, कि आप दूसरों के लिए गलत दिखा सकते हो पर कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस में कहाँ जाओगे, खुद से कैसे जीत पाओगे, राइट। तो जब ये एक्सप्लेन करता है, जब आप आर्ग्यू करते हो वहाँ पे कि ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियलिज्म के ऊपर जाके कॉन्शियसनेस की बात करनी चाहिए अपनी, कॉन्साइंस की बात करनी चाहिए अपने, राइट, कि लोगों के लिए भला करना चाहिए हमें, एक ट्रूली एल्ट्रुइस्टिक थिंग की आप बात करते हो और उसके बाद आर्ग्यू करने के बाद एक इम्पैक्टफुल कोट देते हो, तो डैट लिव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, कि बंदे को पता है कि कहाँ पे ये पॉइंट सुटेबल है। और वो ये पॉइंट बताता है कि जो फिलोसोफर है, सिर्फ और M.K. गांधी, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में मारा था ये कोट, आप वो उस कंटेक्स्ट को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, उसे आप कंटेक्चुअलाइज कर पा रहे हो, एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, राइट। तो कोट से आप एग्जाम्पल शुरू कर सकते हो। दूसरा एनेक्डोट्स, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। एनेक्डोट्स और स्टोरी मैं इसे कंबाइन कर देता हूँ, राइट। ये इंपैक्टफुल होता है पर छोटा होता है इंट्रो। कोट मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का हो सकता है, राइट। मल्टीलैटरलिज्म के लास्ट ईयर बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था, डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म या डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Why are we seeing a decline in multilateralism? Anything else? COVID, right, COVID. One word answer, COVID. So triggered by COVID and then appreciating due to other reasons, right? Or depreciating due to other reasons. Problems are increasing. तो multilateralism decline हो रहा है। तो आपको कोट नहीं आता, तो उस पर भी एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, कोफी आनंद का ही है शायद, या हमारे लास्ट UN सेक्रेटरी जनरल का है। वो कहते हैं कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सम कंट्रीज टू ट्रीट मल्टीलैटरल फोरा एज द मल्टीलैटरलिज्म आले काटा, मतलब एक होटल की तरह यूज करते हैं। दे कम हियर, दे ऑर्डर एनीथिंग दे लाइक एंड दे लीव व्हेन द मैटर डज नॉट सूट देम। एक रेस्टोरेंट की तरह यूज कर रहे हैं। दिस इज अ कोट, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम फ्रेमिंग अप माई सेल्फ। तो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के स्टेटमेंट को पढ़े हुए तो वो भी एक कोट हो सकता है। मे बी नरेंद्र जी मोदी के भी कोट्स जो हैं वो बोलते हैं, तो उनमें से कुछ कोट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे सबका साथ सबका विकास, काफी इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, आप यूज कर सकते हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, आप पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हो। कुछ भी आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, आप पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो सबका साथ सबका विकास एक कोट, जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कोट यूज कर सकते हैं। सेम गोज विथ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। पर्सनल मोटिवेशन की बात कर सकते हैं। यू कैन एंड योर एसे, यू कैन स्टार्ट योर एसे विथ अकेला चलो रे बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि वो उससे बढ़िया मोटिवेशन क्या हो सकता है पर्सनली इंडिविजुअलिज्म के बारे में, कि चलो जब कोई तुम्हारी पुकार ना सुने तो अकेला चलो रे, राइट, बांग्ला में है, ठीक है। तो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। पर्पस ऐसे का क्या है, लास्ट टाइम मैंने दिया था तो मैंने इंट्रो किया था बुद्धा के एग्जाम्पल से। तो इंट्रोडक्शन बुद्धा के एग्जाम्पल से होता है, तो उससे बड़ा क्लीशे कुछ नहीं हो सकता। इन्विजिलेटर जो होंगे एक सीनियर ऑफिसर रहे होंगे या एक सीनियर पर्सनालिटी रहे होंगे जो कि किसी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट होंगे, और उन्हें डे 1 का लड़का उन्हें बुद्धा का एग्जाम्पल दे रहे हैं इंट्रोडक्शन। इससे बड़ा क्लीशे क्या हो सकता है। एवरीबॉडी नो कि बुद्धा घर छोड़ के चले गए थे और ही अटेंड निर्वाणा, या क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं संस्कृत वर्ड क्या है, कैवल्य जैनिज्म में है। महापरिनिर्वाण क्या है, डेथ, तो फिर महापरिनिर्वाण क्यों बोल रहे हैं, निर्वाण। चलो ठीक है, देख लेना, इनलाइटनमेंट, ठीक है। तो सबको पता है कि बुद्धा निकले घर से, घर छोड़ के गए, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए और ही अटेंड इनलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि वर्ल्ड में सफरिंग है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड देयर आर रीजन फॉर सफरिंग, देयर इज अ रेमेडी फॉर दोज सफरिंग्स, फॉलो द 8 पाथ फॉर दैट रेमेडी, राइट। हम लोग भी घर छोड़ के बाहर आए हैं और ये बात सबको पता है, बुद्धा का भी एग्जाम्पल सबको पता है। तो इतने क्लीशेज नहीं यूज करने, इतने रिपीटेड इंट्रो नहीं यूज करने, अवॉइड देम, क्योंकि आपके जैसे 50 to 60% फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले लोग वही एग्जाम्पल लिख रहे होंगे और एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाता है। थॉट प्रोसेस आपका इंटेंशन अच्छा है पर इंट्रो कुछ इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कि कैची होना चाहिए, कैची, ठीक है, कि जिससे लगे कि कुछ हो रहा है। आई टेल यू, मतलब आई ट्राई टू डू समथिंग इनोवेटिवली दिस टाइम। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह प्रिपरेशन से दूर रहना चाहिए, बट आई टेल यू आई हैव यूज्ड कोरा एक्सटेंसिवली टू इनरिच माई आंसर्स। काफ़ी एक्सपर्ट्स अवेलेबल है सोशल मीडिया में जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, राइट। तो मैं आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। डिसेबिलिटी पे बात हो रही थी, तो एन एक्सपर्ट फ्रॉम US यूनिवर्सिटी सेज कि
disability is more of a social phenomenon than a physical phenomenon. Why? Physical disability है, अब किसी की टांगे नहीं है तो वो physical disability है पर्सन, बट ही आर्ग्यूज कि वो social disability है, वो एक social phenomenon. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक डिवाइस है जिसके बिना वर्ल्ड के आधे लोग डिसेबल्ड हैं, और वो है चश्मा जो मैंने अभी पहन रखा है. जस्ट बिकॉज इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, हर 5वीं दुकान में आपको चश्मा मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अंधे नहीं हैं. इसी तरह अगर एक बंदा डिसेबल्ड है जिसका पैर नहीं है, उसे भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाए कि व्हीलचेयर हर जगह अवेलेबल हो और सारे बिल्डिंग्स व्हीलचेयर से एक्सेसिबल हो, तो वो भी डिसेबिलिटी नहीं रहेगी. विल सी देम एज वन ऑफ आवर्स, राइट? गूज़बम्स आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, चलो आएंगे कभी कभी. तो this story is impactful, right? That you can give me, right? कि this story is impactful compared to that Buddha story, right? तो दिस इज what I wanted to say कि एक स्टोरी जो है, इंट्रो जो है, वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए. अगर एक बंदा बुद्धा की स्टोरी लिखता है, आप इन्विजिलेटर हो, एक बंदा मैं ये स्टोरी लिखता हूँ किसी के बारे में, तो आप डेफिनेटली मेरी तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश करेंगे, तुरंत पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ अलग लिखा है जो किसी ने नहीं लिखा है, और वो इम्पैक्टफुल भी है, राइट? क्रक्स को बता रहा है. इंक्लूसिविटी में आप ये स्टोरी यूज कर सकते हैं कि वाई सोसाइटी इज नॉट इंक्लूसिव. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उसका. तो इंट्रो जो है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए. आपको क्लियर एक्सपोजिशन ये अभी क्लियरली समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? एक इम्पैक्टफुल एनेक्डोट में, एक इम्पैक्टफुल कोट में, और एक क्लीशे स्टोरी में, राइट? तो हुकअप करना है उन्हें कि हुक्ड हो जाए आपकी स्टोरी से कि चलो कुछ अच्छा मिला, इंटरेस्टिंग. बैक टू बैक वो कॉपीज चेक कर रहे होंगे एंड देन ही विल हुक अप टू योर कॉपी कि हाँ कुछ नया लिखा है. तो आपको रुकवाना है उन्हें आपके कॉपी पे कि थोड़ा ध्यान तो दें कि लिख क्या रहे हैं, राइट? तो इंट्रो वर्क्स दैट वे. तो एनेक्डोट स्टोरी का पर्पस आपको समझ में आया. कहाँ से कलेक्ट करेंगे जो आपको एक्चुअली इम्पैक्ट करता है. मैंने जो आपको स्टोरी बताई, वो नरेट किया, वो अपने वर्ड्स में नरेट किया. स्टोरी कुछ थी, बट आई एक्सप्लेन्ड इट इन माई ओन वर्ड्स, राइट? आपको भी ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा तो स्टोरी डाइल्यूट हो जाएगी, आपकी इंट्रोडक्शन डाइल्यूट हो जाएगी. दैट टेक्स अस टू language expression and coherence. ठीक है? तो स्टोरी अच्छी हो सकती है आपके पास, लेकिन आप एक्सप्रेस ना कर पाओ तो दैट विल अगेन बी अ डिजास्टर. आपको मार्क्स मिलेंगे, कम मिलेंगे. तो एक इम्पैक्टफुल स्टोरी होने के लिए एक इम्पैक्टफुल लैंग्वेज होना चाहिए, एक इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? तो एक ऐसे में आप ये कर सकते हो कि इंट्रो से स्टार्ट किया, बॉडी पे क्वेश्चन आंसर किया, सस्पेंस बनाया, एंड देन कंक्लूजन प्री कंक्लूजन में क्लाइमेक्स रिवील किया, तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा उन्हें, राइट? तो ये हो सकता है. लेकिन ये सब पुल आउट करने के लिए, जैसे दोस्तों के बीच में जोक मारना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, राइट? कि किसी बंदे ने एक जोक पुल ऑफ किया तो लोग हंस दिए. लेकिन एक सीनियर वेल रेड पर्सन्स के सामने जोक पुल ऑफ करना बहुत टफ हो जाता है. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा कोई जोक सुनाओ, तो आपको डर लगेगा कि लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा. हो सकता है कोई ना हंसे, हो सकता है, राइट? तो सेम यहाँ भी होता है कि नॉर्मल आप कुछ लिख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको समझ में सब आ रहा है. लेकिन जब यहाँ लिखोगे, जो पब्लिक होने वाला है, जो एक इन्विजिलेटर के पास जाना है, तो एक ऐसे में कुछ फनी बोल पाना, कुछ यूनिक बोल पाना, कुछ इम्पैक्टफुल सस्पेंस क्लाइमेक्स थ्रिलर दे पाना, अपने वर्ड्स के थ्रू थ्रिलर रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है. मूवीज में इजी होता है, लेकिन बुक पढ़ने वाले लोग एंजॉय कर सकते हैं. तो बुक में थ्रिलर लिखना टफ होता है, मूवी में थ्रिलर बनाना आसान होता है, क्योंकि उसमें दिखा दिया जस्ट, राइट? लिखना, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेशन जनरेट करना इज अ पावरफुल थिंग. तो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना, अपने वर्ड्स को समझना, आप बोल क्या रहे हो, वोकैबुलरी इंप्रूव करना. तो एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था न्यूज़पेपर में. न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, मैगजीन से वो नहीं होगी, क्योंकि वो एक कोहेरेंट वे में आपका एडिटोरियल लिखा रहता है. दैट इज ए कंप्लीट पीस ऑफ नरेटिव. एक कंप्लीट नरेटिव है एडिटोरियल, एक कंप्लीट एडिटोरियल. तो जैसे वो लिख रहे हैं, आप स्टाइल्स पिकअप कर सकते हैं वहाँ से. स्टाइल्स कैसे लिख रहे हैं, कोहेजन कैसे आ रहे हैं वर्ड्स में, कैसे फ्लो चल रहा है. फर्दर वर्ड हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, मूविंग अवे हो गया, मूविंग फर्दर हो गया, राइट? कैरिंग आउट फ्रॉम हियर हो गया. तो ये सब कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर लिंकेजेस, जो पैरा चेंज करने पे आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए, जो कनेक्टर्स और लिंकेजेस हो गए, वो सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में, ताकि एक पैसेज से दूसरे पैसेज तक फ्लो बना रहे, राइट? तो दैट इज इंट्रो. खत्म करते हैं, इंट्रो हो गया आपका. और एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, आजकल थोड़ा कम चलता है. हियर यू कैन इंट्रोड्यूस कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर बी. गुडान टाइप की, से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हो. रमन और अमन दो लोग थे, ठीक है? देयर वर टू कैरेक्टर्स, रमन एंड अमन. रमन डिड दिस, अमन डिड दिस.
चलो एक क्लाइमेट चेंज नहीं, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दो फिक्टिशियस कैरेक्टर मैंने यूज़ करे। एक अमन है जो कि दिल्ली में रहता है, और एक रमन है जो कि एक रिमोट लोकेशन में इंडिया कहीं रहता है, एमपी में सपोज रीवा में रहता है, रीवा इज अ प्लेस इन एमपी। तो दोनों की लाइफ में एक दिल्ली में रहता है जो कि 6th फ्लोर अपने फ्लैट पे रहता है, उसका शाम जो है एक छोटे से पार्क के अंदर निकलता है और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि लोग अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हैं और उनके पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं। रीवा में एक कल्चर है गाँव में कि लोग बाहर निकल के जाते हैं हर शाम में, एक कॉमन देयर इज ए कम्युनिटी प्लेस वेयर ऑल द चिल्ड्रन प्लेस टुगेदर, ठीक है। तो शाम में सब लोग मिलेंगे, वहाँ पे जाके खेलेंगे, एक इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी, एक अच्छा लाइफ जी रहा होगा। दूसरा ये कि अमन को हमेशा क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, अस्थमा है उसे, ठीक है। तो दिल्ली में ऐसा हो सकता है, राइट। तो लेकिन रीवा में ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको लगेगा कि दिल्ली की लाइफ इतनी पॉश है, इतना महंगा है। से फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग 15,000 20,000 रुपये का रेंट ऐसा करके दे रहे हो, राइट। और वहीं रीवा में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली लाइफ की क्वालिटी किसकी अच्छी है? रमन के साथ कितने लोग हैं? अमन के साथ कितने लोग हैं दिल्ली में? कोई भी किसी के साथ नहीं है। तो अगेन इथिकल डायलेमा है ना। लेकिन हमें पता चल रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में अमन की लाइफ खराब हो रखी है, बीमारी है उसे। तो ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है। आप रमन अमन को इवैल्यूएट करते चलेंगे पूरे एसे में, दोनों को क्रॉस सेक्शन में खड़े करेंगे दोनों को बीच में, और क्वेश्चन पूछेंगे इन दोनों कैरेक्टर से कि किसकी लाइफ कैसी चल रही है, और उससे आप लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और फाइनल अपना कंक्लूजन दोगे। तो ये एक ऐसे चल सकता है। रीजनेबल है, आपको भी अंडरस्टैंड करने में ईजी हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच योर एसे राइटिंग कैन गो, ठीक है, डन। या इम्पैक्टफुल होता है, राइट, बिल्कुल। तो ये फिक्टिशियस कैरेक्टर का है एंड दिस इज इजी टू पुल ऑफ, है ना। ये अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग, ऐसे राइटिंग कभी नहीं किया है, तो दिस इज रियली समथिंग विच इज इजी टू डू, है ना। ये सब में थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें एक्सप्लेन करने में, लेकिन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ से जाने के बाद जितनी भी प्री नॉलेज है आपके पास, एक सिंपल सा टॉपिक ले लो, मेरे से टॉपिक ले लो, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ए डिवास्टेशन फॉर ह्यूमैनिटी, सपोज एकदम सिंपल सा, कोई इथिकल डायलेमा नहीं। क्लाइमेट चेंज सबको पता है, डिवास्टेशन फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। इस टॉपिक पे एक 600 वर्ड का ऐसे, 1200 नहीं बोल रहा, अभी लिखना मुश्किल होगा, 600-700 वर्ड का ऐसे आप लोग लिख के ट्राई करना, राइट। अपने पीयर ग्रुप में ही चेक करा लेना, देखना सामने वाला क्या सोचता है। बस रीड ही तो कराना है, 3 मिनट लगते हैं 600 वर्ड पढ़ने में, 3-4 मिनट। तो एक ट्राई कर सकते हो आप, चारों में से कोई सा भी वे से स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, दैट इज इट। सेकेंड पार्ट है लिंकेज, डायरेक्शनल पैसेज। तो सपोज आपने फर्स्ट पैसेज में दे रखा है कि एक एनेक्डोट है वहाँ पे, या एक स्टोरी है, जैसे मैंने आपसे डिसेबिलिटी वाली स्टोरी की बात की थी, चश्मे वाली स्टोरी की बात। तो सेकेंड पैसेज में आप लिंक करते हो कि हाउ इज दैट पैसेज लिंक टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, या इंक्लूसिविटी या एक्सक्लूसिविटी, राइट। तो इसमें आप बताते हो कि माई एसे इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ दिस फैक्ट्स एंड विल ट्राई टू असेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग समथिंग एंड देन डेराइव अ लॉजिकल कंक्लूजन टुवर्ड्स द एंड, राइट। ये बताना है आपको, डायरेक्शन देना है कि क्लियर रहे रीडर को कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इज इट ओके? ठीक है। ये डायरेक्शनल पैसेज नंबर 2 या 3 होता है इन जनरल। उसके बाद आते हैं बॉडी में आपको मल्टीपल डायरेक्शंस कवर करने। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, ये सबसे पहले करते हैं। इसको मैं समराइज कर दूंगा थोड़ी देर में, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। आई विल कट इट डाउन। चलो, तो ये आ गया आपका मटेरियलिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे। मटेरियलिज्म एंड अल्ट्रुइज्म, या वांटलेसनेस बोलते हैं इसे, ठीक है। वांटलेसनेस आप अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ठीक है। इंट्रो में आपने एक स्टोरी सोची मटेरियलिज्म का, क्या हो सकता है बताओ। इस पे हो सकता है पंचतंत्र की स्टोरीज आती थी, राइट। सपोज आपने वहां से माइथोलॉजी से भी उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जितने डायमेंशंस उतने अच्छा। यूपीएससी रेडली एक्सेप्ट माइथोलॉजी। अच्छा, आप एनालॉजी देंगे अगर तो सबको एक्सेप्ट होगा, है ना। एक अच्छा एग्जांपल देना है बस यहाँ पे। तो सपोज मैं पंचतंत्र से कुछ स्टोरी उठा लिया, पंचतंत्र मैगजीन स्टोरीज आती थी, राइट। या मैं मान रहा हूँ कि माइथोलॉजी महाभारत से आपने कुछ उठा लिया। आई वुड टेक अ सिंपल टॉपिक यहाँ पे, ताकि आपको फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा ना बताना पड़े। लास्ट ईयर का टॉपिक था एक कि साइंस एंड टेक इन इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक इन IR,
सिंपल लुकिंग टॉपिक, राइट? ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी रादर देन इफ आई टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल थिंग्स. आप लोग को समझ में आएगा एथिक्स में अगर फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, फिलोसॉफिकल पार्ट. तो मेरी फिलोसफी ऑप्शनल नहीं है, मैथ्स है, पर उतना नेसेसरी होता है आपके आंसर्स को, आपके क्वेश्चंस को, ऐसे को डायमेंशंस देने के लिए. तो बेसिक फिलोसफी फिलोसोफर्स आनी चाहिए, फिलोसफी आए चाहिए नहीं, फिलोसोफर्स की बातें आनी चाहिए, है ना? क्या डिफरेंसेस है वेरियस वैल्यूज़ में, वेरियस थॉट प्रोसेसेस में, वेरियस लाइन ऑफ थॉट्स में, पॉपुलर लाइन ऑफ थॉट्स में, वो पता होना चाहिए. साइंस एंड टेक इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इंट्रो में पंचतंत्र से यहाँ तो नहीं देंगे, चलो देखते हैं कहाँ से. यहाँ से पुष्पक विमान का एग्जाम्पल दे रहा है मेरा एक दोस्त. पुष्पक विमान सुना है क्या? क्या था? हाँ, रावण आया था. कहाँ से आया था? कहाँ से आए थे? श्रीलंका से आए थे. कहाँ आए थे? इंडिया आए थे. इंडिया आए थे. तो यहाँ तो आईआर दिख रहा है, श्रीलंका से इंडिया, राइट? और यहाँ पे क्या भी दिख रहा है? साइंस एंड टेक, है ना? तो हो सकता है इंट्रो हो सकता है, व्हाई नॉट? माइथोलॉजी है, उन्हें भी पता है, पर रेफरेंस समझ में आ रहा है. मैंने स्टार्ट किया था सुलेमान कासिम. इनका नाम सुना है क्या किसी ने? कौन है? राइट, IRGC के इनके हेड थे, जिनके ऊपर ड्रोन अटैक किया था यूएस ने, और इनकी डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट, जिसमें इरानियन रिवॉल्यूशन की फिर से बात होने लगी थी कि अपन बदला लेंगे. सो ये एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो कि हवा में उड़ रहा है, और ये दो नेशंस के बीच में रिलेशंस बदल दे रहा है. तो मैंने बताया कि ये कैसे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. समझ में आ रहा है? इम्पैक्टफुल है ना? 2 दिन में बदल गया ना. उसके बाद से न्यूक्लियर टॉक खत्म करने की बात आ गई वहाँ पे, जो GP क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, राइट? तो बदल जाता है, राइट? एक और एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ हमारे दोस्त हैं, ये बात कर रहे हैं सार्क सैटेलाइट की, कर रहे हैं ना? अब ये है क्या? दिस इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? यहाँ से किस स्टोरी उठाएंगे, कैसे हमारे सैटेलाइट में बांग्लादेश के एक गांव में ड्रॉट लाने से बचा लिया उसे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मल्टीपल डायमेंशन से सोचना है, एनरिच करना है अपने आंसर्स को, राइट? एक बढ़िया आइडिया मिल रहा है ना, एक फ्लो मिल रहा है ना आपके ऐसे को, राइट? तो ब्रेनस्टॉर्म में सोचना है. अब साइंस एंड टेक में देखते हैं क्या है. साइंस एंड टेक, देखो मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने, आपको क्या करना है साइंस एंड टेक में. क्या समझ में आ रहा है? साइंसेस, टेक्नोलॉजी, अदर एप्लीकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ IR, ठीक है? और एक स्पेस हमेशा रखना है इंडिया के लिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने वाले हो आप, तो इंडिया विल ऑलवेज बी अ फोकस. तो जो भी आप लिख रहे हो, एक इंडिया के लिए अलग पर्सपेक्टिव डेडिकेटेड 2-3 पैराग्राफ होना चाहिए सेक्टोरल एनालिसिस में. किसका? इंडिया का, राइट? आई विल क्विकली डू दिस फटाफट. साइंस में देखते क्या आ सकता है हमारा, क्या आ सकता है? रिसर्च आ सकता है, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप आ सकती है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी आ सकती है ना? इसमें और क्या आ सकता है बताओ? स्पेस आ सकता है शायद, इसको मर्ज करेंगे तो टेक के साथ यहाँ बायोटेक आ सकता है, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज आ सकती है, सैटेलाइट्स आ सकती है शेयरिंग, है ना? ड्रोन आ सकता है, न्यूक्लियर साइबर अटैक आ सकता है. आपको पता है इजराइल ने अटैक किया था स्टक्सनेट से ईरान में, राइट? न्यूक्लियर पॉलिसी आ सकती है, न्यूक्लियर अटैक आ सकता है, और क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है. आप कुछ भी उठा के देखो, साइंस एंड टेक चलता रहता है ना. इसमें बहुत सारी पॉलिसीज आ सकती है आपके, साइंस एंड टेक में है. न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पॉलिसी में आ सकती है ना? तो साइंस एंड टेक इज स्टिल ए डोमिनेंट प्लेयर इंटरनेशनल रिलेशंस. आपको पता होगा कि हमारे दूसरे न्यूक्लियर वॉर के बाद, न्यूक्लियर ऑपरेशन के बाद, जो हमने बॉम्ब डिटोनेट किया था, पाकिस्तान ने 15 दिन के अंदर कर दिया था पोखरण में. तो डैट सेज अ लॉट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रेजाइलिटी, राइट? कि एक बंदे ने, मतलब एक नेशन ने किया, बैलेंस ऑफ पावर तुरंत डिस्टॉर्ट हुआ, और उस बैलेंस ऑफ पावर को रीस्टोर करने के लिए तुरंत टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने निकल जाते हैं. तो एक ही चीज़ है, टेक्नोलॉजी ही वो बैलेंस ऑफ पावर ला सकती है. अगर आज रशिया यूक्रेन को अटैक कर पा रहा है, वो इसलिए है कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर नेशन नहीं है. मे बी अगर होती तो रशिया सोचता. तो कैसे बैलेंस ऑफ पावर तुरंत शिफ्ट हो जा रहा है? एक न्यूक्लियर नेशन के बीच में नहीं हो सकता था ये, मे बी. तो ये सोचना है, ये सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं, राइट? अदर एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, इस पर मैं बात करता हूँ. IR में आप बात करोगे, अगेन मैंने बात किया कि न्यूक्लियर ट्रीटीज़ जो होती है, स्पेस ट्रीटी होती है, डेब्री वगैरह की आप बात करोगे, राइट? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है. आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि UNSC में हमने एप्लीकेशन बना के दिया है, यूनाइट अवेयर, कि जितने पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं उनको सेफगार्ड करने में, ट्रैक करने में हेल्प कर सकता है. तो इंडिया इज यूजिंग इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन फर्दरिंग इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस. इसकी बात कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर सकते हैं हम लोग. आपके पास इतने सब टॉपिक्स हैं, आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13। एक हिस्टोरिकल डायमेंशन दे सकते हैं। हिस्टोरिकल डायमेंशन क्या दे सकते हैं बताओ? कि साइंस एंड टेक हैज इनेबल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। गलत है क्या ये? स्पिनिंग जेनी आ गई ना, कहाँ ब्रिटेन में ही सारी टेक्नोलॉजी स्टार्ट में आई। अर्ली लीडर, अर्ली मूवर्स एडवांटेज था उन्हें, एंड दैट gave them a huge advantage in developing their industries। तो साइंस एंड टेक न्याय यार। तो एक पैराग्राफ इसके बात करेंगे, सब में एक एक पैराग्राफ बात करेंगे तो 1200 वर्ड्स कम पढ़ने लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में। बट इनमें मैंने कोहेजन की बात नहीं की, आपको कोहेसिव वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक्ड है और फिर उसे वीव करके आपका एक लॉजिकल कंक्लूजन जाएगा। कंक्लूजन जो है इस पे थोड़ा सा बात कर ले। बॉडी पे आपको पता चला, जो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आप हर एक कीवर्ड पे एक पैराग्राफ लिख सकते हो, एक एक स्टोरी भी डाल सकते हो या एग्जांपल्स डाल सकते हो सबके साथ। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि न्यूक्लियर रिसर्च में बायोटेक में आ जाए तो इंडिया 3 पेरेंट बेबी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है वर्ल्ड वाइड, राइट? तो इसकी बात अपन कर सकते हैं। वैक्सीन्स की बात कर सकते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं, कोविड-19 की बात कर सकते हैं। एवरीथिंग इज लेजिट कनेक्टेड टू साइंस एंड टेक इन इंटरनेशनल रिलेशन। सैटेलाइट्स की बात कर सकते हैं, ड्रोन्स की बात कर सकते हैं, चाइना का एडवांटेज की बात कर सकते हैं, राइट? अभी अपना गालवान क्राइसिस न्यूज़ में था तो आप गालवान को कोट करके बता सकते थे कि कैसे सैटेलाइट से हमने ट्रेस किया कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे, या अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डुअल यूज़ विलेजेस बनाए जा रहे हैं। तो दिस इज योर कंटेक्स्ट। बॉडी के लिए काफ़ी सफिशिएंट आपको मिलेगा, बस एक कोहेसिव वर्ड पैटर्न में आपको बातें करनी है, एक लॉजिकल आर्गूमेंट देना है, एंड यू विल बी थ्रू। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन का पर्पस क्या होता है पता है? एक ऐसे का क्रक्स ये होता है कि यू स्टार्ट विद एन इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन जो आपको आपके राइटर, आपके रीडर को हुकअप करे, उसके साथ हुक करके रखे, है ना? हुक करके रखेगा तो वो उनकी इंटरेस्ट बनी रहेगी, एक अच्छा फ्लो मिलेगा तो उन्हें एफर्ट नहीं लगेगा ग्लाइड करने में पैसेजेस में। और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि दे टेक समथिंग फ्रॉम योर एसे, दे हैव अ फीलिंग ऑफ हैविंग लर्नड समथिंग फ्रॉम योर एसे। बस कंक्लूड नहीं करना है। एक अच्छा एसे वो होता है जो स्टार्ट इम्पैक्टफुली होता है एंड लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, क्योंकि मार्किंग आखिरी पैसेज के बाद होती है आपकी। तो कंक्लूजन जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल लिखना है, ऐसा लिखना है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट छोड़ जाए राइटर पे। इन चीज़ों की बातें नहीं होती है, वर्ड्स वगैरह पे होती है। आप समझो कि जो लिख रहे हैं वो, जो पढ़ रहे हैं आपका ऐसे, वो एग्जॉस्टेड होंगे बहुत सारे ऐसे चेक करके, बहुत कॉमन आइडियाज़ के बीच में। तो एक लास्टिंग है, इससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होती। अगर आपको कुछ समझ में आ जाता है तो एक पॉजिटिव सी एनर्जी आती है खुद में, है ना? अच्छा लगता है कि यस आई हैव लर्नड समथिंग, डेवलप्ड सम नॉलेज। ऐसा ही फीलिंग आना चाहिए एक रीडर को, आपके इन्विजिलेटर को। कहाँ से? कंक्लूजन से। इफ़ यू कैन डू डैट, वो बहुत बढ़िया होगा। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक कोट बताता हूँ आपको। तो इंटरस्टेलर किन लोगों ने देखा है? इंटरस्टेलर, साइंस फ्रीक्स, राइट, गुड, अच्छी मूवी है, देखना कभी बैठ के। तो अपने हमारे इंटरस्टेलर हो गया, रोड नॉट अगेन हो गया, ठीक है। डायलन थॉमस जो हैं वो बोलते हैं कि सपोज मोटिवेशन की बात कर रही है, पर्सनल कैपेसिटी की बात कर रही है, एक ऐसा ऐसे है जो आपको बोलता है कि आप मोटिवेट करें कि इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, राइट? सपोज इंडिया कैन बी अ सुपर पावर या इंडिया कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पावर इन द फ्यूचर, राइट? तो आप इम्पैक्टफुल कैसे कंक्लूजन लिख सकते हो? तो आप फेमस पोएम यूज़ कर सकते हो। तो डायलन थॉमस की पोएम है कि डू नॉट गो जेंटल इनटू डैट गुड नाइट। इंटरस्टेलर में यूज़ करते हैं, राइट? तो डू नॉट गो जेंटल इनटू डैट गुड नाइट, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, राइट? तो आप जब पूरे ऐसे में बात करोगे कि एक एनर्जेटिक इंडिया कैसा हो सकता है, एक इम्पैक्टफुल इंडिया कैसा हो सकता है अपने रिलेशंस को, एंड यू एंड विद दिस कोट, दिस पोएम कि डू नॉट गो जेंटल इनटू, यही मेरी अपील है, डू नॉट गो जेंटल इनटू डैट गुड नाइट, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। तो दिस लीव्स अ इंप्रेशन, कोहेजन छोड़ता है आपके ऐसे में, राइट? अब एक इन्वायरमेंट का ऐसे आ रहा था, मैंने लिखा था लास्ट ईयर, तो इन्वायरमेंट के ऐसे में आ रहा था, तो वहाँ पे आता है, उस पर भी एक पोएम मैंने यूज़ किया था। पोएम था आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन। तो सब लोग बात कर रहे थे, इकोनॉमिक वायबिलिटी मेरे को ज़्यादा दिख रही थी, फिर भी मैंने बात किया कि टू रोड्स डाइवर्ज इनटू एन रोड एंड आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो जब फ्यूचरिस्टिक की बात करें, शायद गुजबम सारे थोड़े मेरे को आ रहे हैं, छोड़ो। तो एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, राइट? So 2 roads diverged into the woods and I took the one less traveled by and that will make all the difference। तो इंडिया के लिए अभी चॉइस है कि उन 2 रोड्स में से एक रोड लें, although this is a different interpretation of the poem but still that remains relevant, right?
तो उसने बात करा कि अभी टाइम है कि वो रोड लेने का जो कि चेंज ला सकता है, एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस दैट इंडिया कैन फील. तो दिस लीव्स अ सेंस ऑफ lasting impression of evaluation of a good feeling, of a positive note, of an optimistic future, right? तो ऐसे बातें करनी है लास्ट में कि आपका ऐसे काफ़ी इम्पैक्टफुल हो पाए, है ना. तो रीडर को भी पढ़ के अच्छा लगे कि एक कोहेसिव पैकेज लिखा गया है, ना कि डिस्क्रीट आंसर्स और पैसेजेस को बस जोड़ दिया गया है. एक कोहेजन लाने की ज़रूरत है. आई थिंक अगर आप लोग थोड़े से एडवांस स्टेज में होते हैं, शायद एक मेंस लिखे होते हैं या मेंस देने के पास होते हैं, तो you could have appreciated more about this session and its contents, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट किया, राइट. बट आपने कहीं नोट किया या आपने लिखा है, एटलीस्ट टेक 1-2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस सेशन जो कि आपको लॉन्ग टर्म याद रहे. तो जब भी आप ऐसे लिख रहे होगे ना, तो बेसिक 2-4 पॉइंट्स याद रखोगे ना इंट्रोडक्शन में, तो डैट विल वर्क लाइक अ चार्म फॉर यू पीपल. थैंक यू ऑल. आई थिंक that was a really supportive crowd again, and best of luck to you people for the coming examinations.